Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about cardiac cycle. See, cardiac cycle means all the events associated to complete one heartbeat. एक हार्टबीट कंप्लीट होने में जितने भी इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल. क्लियर? जैसे कि एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर ज्वाइंट डायस्टोल होगा. तो ये जो है दैट मेक्स द वन हार्ट बीट एंड दैट इज द कार्डियक साइकिल. और एक हार्ट बीट को दैट मीन वन कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है. क्लियर? सो कार्डियक साइकिल divided into three parts, that is atrial systole, ventricular systole and joint diastole or complete cardiac diastole. See one thing here, सिस्टोल का मतलब होता है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होना. क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन. सिस्टोल का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन. और डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन and systole means contraction. Clear? See, first we label this. We know this is the right atrium, this one right ventricle, this chamber is left atrium and this chamber is left ventricle. Four chamber. Clear? And this is the opening of superior vena cava, this is the opening of inferior vena cava, and this is the opening of pulmonary veins, two from left and two from right lungs, that is four pulmonary veins. And here we draw this and this one is the tricuspid wall, this one is the bicuspid wall or mitral wall, and that is also known as atrioventricular valve. And from right ventricle deoxygenated blood goes to the lungs for oxygenation through the pulmonary artery. So first we draw the pulmonary artery. Clear? From here okay, this is the pulmonary artery, and this pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for oxygenation. So I write here, this is the pulmonary artery, and is going into lungs, that is the left lung, and this one is the right lung. Okay, and this one from this chamber left ventricle oxygenated blood goes in different parts of body organ through the systemic aorta or arch, through the systemic aorta or arch. See, like this, and this is opening branches of the systemic aorta, and it goes to the body, different body parts, and this is the systemic aorta or systemic arch which carry oxygenated blood from
left ventricle. Okay, see this one, this septum is the interventricular septum, and this black line one is the interauricular septum. Okay, interauricular septum. See here, we know there is the opening of coronary sinus. This is the coronary sinus. Open in right atrium and pour the deoxygenated blood from the wall of the heart. See here, first we see what are the events takes place during the atrial systole. जब ये दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया सिस्टोल होगा, दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या क्या हैपनिंग होगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग दिस फेज. सो फर्स्ट आई राइट हियर, दैट इज एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल के समय क्या क्या हैपनिंग होने वाला है देखते हैं. ओके, अब देखिए, जैसे ही दोनों एट्रिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, यूस्टेशियन वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड इंफेरियर वेना कावा, तो यूस्टेशियन वॉल्व क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा. क्लियर. और कोरोनरी साइनस और राइट एट्रियम के बीच में थिबेसियन वॉल्व प्रेजेंट है, ये भी क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा. क्लियर, ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड न हो. और क्या होगा, ये जो ओपनिंग है सुपरियर वेना कावा का, ये भी क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा. एंड द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यूस्टेशियन वॉल्व, एंड थिबेसियन वॉल्व क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा. ओके, और ये जो ओपनिंग है, इसका ओपनिंग सुपरियर वेना कावा, और पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग्स हैं, क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा. दे विल क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. क्लियर. ओके, अब क्या होगा, यहां पे देखेंगे हम लोग, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या करेगा, ओपन हो जाएगा. क्लियर. सो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएंगे. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन, क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा. ओके, तभी तो ब्लड कहां से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा. कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर. इस तरह से ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा थ्रू दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. क्लियर. नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ब्लड फ्रॉम एट्रिया, दोनों एट्रिया से, बोथ द एट्रिया, ब्लड फ्रॉम एट्रिया
comes in ventricles in their respective chambers. क्लियर? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा. क्लियर? सो दिस विल हैपन ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल. और ये एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है. कितने सेकेंड के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए. क्लियर? ओके. और जब ये एट्रिया, जब दोनों एट्रिया सिस्टोल कंडीशन में होता है तो ये जो दोनों वेंट्रिकल्स है ये डायस्टोल कंडीशन में होगा. इसका मतलब ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स आर डायस्टोल. डायस्टोल. इस समय वेंट्रिकल्स क्या है? डायस्टोल है. क्लियर? फॉर द सेम टाइम 0.1 सेकेंड. क्लियर? नाउ वी सी one thing here. जब ये ओके, ये तो हो गया हमारा. अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो कौन कौन से हैपनिंग्स होगा, इवेंट्स होंगे. सो आई राइट हियर सेकेंड. हम लोग यहां पे लिखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. मतलब जब वेंट्रिकल्स दोनों सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हैपनिंग होगा. क्लियर? अब देखते हैं. जैसे ये दोनों वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा तो क्या होगा? ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में न जाए, मतलब बैकफ्लो ऑफ ब्लड न हो. इसके लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या होगा? क्लोज हो जाएगा. तो सबसे पहला हैपनिंग क्या है यहाँ पे कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves क्लोज. क्या हो जाएगा? ये क्लोज हो जाएगा. ओके. और जब ये क्लोज होगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, तो उस समय जो है कि साउंड प्रोड्यूस होगा. और ये जो साउंड है, इस साउंड को बोलते हैं हम लब. LUB. क्लियर? साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व. क्लियर? तो इसी साउंड को बोलते हैं हम फर्स्ट हार्ट साउंड. दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड. और ये फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजर. क्लियर? और ये क्या, किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है? लब. क्लियर? और इसी साउंड को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर, दैट मीन सिस्टोलिक साउंड. कैसा साउंड है ये? दिस इज द सिस्टोलिक साउंड. इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक साउंड या फर्स्ट हार्ट साउंड. दैट इज द लब. Later we will compare between lub and dub sound. Okay, but here it is the first heart sound and it is considered as the systolic sound. क्यों systolic sound बोलते हैं? क्योंकि जब दोनों वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल हो रहा है, तब क्या हो रहा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज द सिस्टोलिक साउंड. क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. ओके, तो यहां पे भी वाल्व प्रेजेंट है, हम लोग जानते हैं. यहां पे भी वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज द सेमीलूनर वाल्व. यहां पे दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेमीलूनर वाल्व. और लेफ्ट वेंट्रिकल
एंड सिस्टेमिक एओर्टा के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, सेमीलूनर वाल्व। और ये सेमीलूनर वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। क्लियर। तो जब दोनों वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाएगा और सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो ये जो सेमीलूनर वाल्व हैं ये ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। क्लियर। ताकि जो ब्लड है वो लंग्स को और बॉडी ऑर्गन को सप्लाई हो। क्लियर। सो आई राइट हियर सेमीलूनर वाल्व्स, सेमीलूनर वाल्व्स ओपन। सेमीलूनर वाल्व क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये खुल गया और ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कितने सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो उसी समय क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल होगा। क्लियर। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो उसी समय एट्रिया क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, डायस्टोल रहेगा। सो आई राइट हियर ड्यूरिंग ventricular systole, during ventricular systole atria क्या रहता है, डायस्टोल होता है। मतलब एट्रिया रिलैक्स रहता है फॉर द सेम टाइम पीरियड, दैट इज 0.3 सेकेंड के लिए। क्लियर। और ये जब एट्रिया सिस्टोल था, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट था, तो वेंट्रिकुलर क्या रहा होगा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहा होगा। कितने सेकेंड के लिए, सेम टाइम, दैट इज द 0.1 सेकेंड के लिए। क्लियर। ये याद रखिए। ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। क्लियर। सो दैट इज द इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब एट्रिया सिस्टोल होता है तो उसी समय वेंट्रिकल क्या होता है, डायस्टोल होता है। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो उसी समय एट्रिया क्या होगा, डायस्टोल होगा फॉर द सेम टाइम पीरियड। ओके। सो these events occurs during the atrial systole and diastole. See, when right ventricle systole करेगा, so during the right ventricle जब सिस्टोल करेगा तो कैसा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कि राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, दैट इज द लंग्स को जाएगा, लंग्स को। क्लियर। किसके थ्रू, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। क्लियर। ओके। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को जाएगा। दैट मीन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल oxygenated blood goes to body parts, body organs through the systemic aorta या systemic arch। क्लियर। इस तरह से ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड का फ्लो होगा। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। दैट मीन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, डायस्टोल होगा। क्लियर। और जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल होता है। ओके, आफ्टर एट्रियल सिस्टोल देयर इज द एट्रियल डायस्टोल। मतलब एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद एट्रिया रिलैक्स करेगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद वेंट्रिकल का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। क्लियर। सो दीज हैपनिंग occurs during the atrial systole and ventricular systole. In next lecture we will discuss about the complete cardiac diastole. जब ये पूरा सभी चेंबर्स क्या करेंगे, डायस्टोल कंडीशन में जाएंगे, जिसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। दैट थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.